Okay, today in the last lecture, we have done with the preparation and reactions of alkene. Preparation and reactions of alkenes we have done. Today we'll be doing the uses of alkene. Uses of alkene. What is alkene? Alkenes are used as a starting material for the preparation of the alkyl halide and alcohol. मतलब अगर हमें अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल अगर बनाने हैं तो अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल किससे बना सकते हैं हम लोग? अल्किन से बना सकते हैं. So alkenes are used as a starting material for the preparation of second ethene and propene are used to manufacture ethene and propene are used to manufacture what? Polythene. मतलब इथीन से बनेगा पॉलीथीन, प्रोपीन से बनेगा पॉलीप्रोपिलीन. इथीन से बनेगा पॉलीथीन और प्रोपीन से बनेगा प्रोपिलीन, polypropylene, and which are used to prepare the polythene bag, which are used to prepare polythene bags, toys, bottle, etc. करेक्ट. मतलब इथीन से बनेगा पॉलीथीन, प्रोपीन से बनेगा पॉलीप्रोपिलीन, and they are used to prepare what? Polythene bags, toys, bottle, etc. Ethene is also used for the artificial ripening of the fruit. Ethene is also used for the artificial ripening of the fruit. मतलब if you want the fruit to be matured before the time, then we can use for the artificial ripening. That is mangoes. So ethene is used for artificial ripening of the fruit such as mangoes. तो ये हमारे uses of alkenes थे. Uses of alkene, correct? Now after uses of alkene, we are going for the next heading. The next heading we are having here is what? Alkynes. What are alkynes? Alkynes are aliphatic. Aliphatic मतलब what? Open chain. Alkynes are aliphatic, unsaturated. Unsaturated means what? They contain carbon, carbon triple bond. And hydrocarbon means they contain two elements, carbon and hydrogen. So what are alkyne? Alkynes are aliphatic, unsaturated hydrocarbon and containing at least one carbon, carbon triple bond are called as the alkyne. मतलब कोई भी अल्काइन अगर आप लोगे तो अल्काइन में कौन से एलिमेंट रहेंगे? दो एलिमेंट रहेंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन. अल्काइंस में दो कार्बन के बीच में क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. और स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? ओपन चेन रहेगा. ओपन चेन, ओपन एंडेड. द कार्बन आइटम ज्वाइन करके रिंग फॉर्म नहीं करेंगे. सो व्हाट आर अल्काइन? अल्काइंस आर एलिफैटिक. अल्काइंस आर एलिफैटिक, unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon triple bond. Alkynes are aliphatic, unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon triple bond. They have the general formula. What is general formula we are having? CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. And where n is what? N is a number of carbon atom. N is a number of carbon atom. अभी हम यहाँ पे एक टेबल देखेंगे. यहाँ पे n इक्वल टू 2 है. n इक्वल टू 2 है. तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? CnH2n minus 2. जनरल फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? CnH2n minus 2. तो n का वैल्यू 2 लिखा मैंने. n इक्वल टू 2. n इक्वल टू 2. 2n, 2 2 is 4. 4 minus 2. 4 minus 2 कितना आएगा? 2. तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? C2H2. C2H2 मतलब कितने कार्बन आइटम है? दो कार्बन है. तो दो कार्बन. दो कार्बन के बीच में क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड. दो कार्बन के बीच में क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड. और कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए देखो, ये कार्बन के पास तीन बॉन्ड है. तीन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, 4. ये कार्बन के पास भी तीन बॉन्ड है. तीन बॉन्ड प्लस एक हाइड्रोजन, 4. एंड इस कंपाउंड को कॉमनली कौन से नाम से बोला जाता है? इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिलीन. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिलीन. एंड दो कार्बन आइटम से क्या बनेगा? इथाइन बनेगा. दो कार्बन आइटम मतलब ईथ एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब वाइन. एक और वापस रिपीट करता हूँ. जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा? CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. n इक्वल टू कितना लिखा यहाँ पे? 2 लिखा. n इक्वल टू 2 लिखा तो C2. H2 2 is 4. 4 minus 2 तो CH2H2.
दो कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में लिखा, एक हाइड्रोजन राइट साइड में लिखा। कॉमनली इस कंपाउंड को क्या नाम दिया गया है, एसिटिलीन। और IUPAC नाम क्या दिया गया है, दो कार्बन एटम मतलब ईथ, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब व्हाट, YNE। n = 3 मतलब क्या रहेगा फॉर्मूला, n = 3 मतलब C3 बाद में 3 2 6, 6 - 2 4, 6 - 2 is 4, C3H4। और यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, तो 1 2 3 कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम। कोई तो दो कार्बन के बीच में क्या लिखो, ट्रिपल बॉन्ड लिखो। कोई तो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिखो। दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिखने के बाद एक कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो तीन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड कितना होगा, 4। यहाँ पे कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड 4। और यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो एक हाइड्रोजन 4। और इस कंपाउंड का नाम है, क्योंकि ये हमारा देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, लेकिन H की जगह क्या लिखा, मिथाइल लिखा, इसलिए उसका नाम क्या लिखोगे, मिथाइल एसिटिलीन। इसका नाम क्या लिखोगे, मिथाइल एसिटिलीन। और IUPAC नेम क्या लिखोगे, 1 2 3, 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अ प्रोप। 1 2 3, 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अ प्रोप। एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, so it is called as what, YNE। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, so it is called as a YNE। okay, 1 2 3 carbon atoms, so it is called as a probe. And carbon carbon triple bond, so it is called as what, Y। now we are going for the next heading, preparation of alkynes। और preparation of alkynes में हमें कौन सा alkyne बनाना है, इथाइन, which is commonly called as what, acetylene। so preparation of acetylene, and acetylene is also called as what, ethyl। preparation of the alkyne, which alkyne we are going to prepare over here, we are going to prepare the alkyne here, that is we are going to prepare the alkyne, that is acetylene or ethyl। The first preparation, that is the first preparation we can say by industrial method, by using the industrial method। मतलब इंडस्ट्री में कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, तो in the industrial method, here by industrial method, the A, ethyl, तो ये ethyl is industrially prepared by controlled partial oxidation of methane at हाई टेम्परेचर। मतलब हमें क्या बनाना है, इथाइन बनाना है, करेक्ट, इथाइन बनाना है। इथाइन कैसे बनाओगे, इंडस्ट्री में इथाइन कैसे बनाएंगे, बाय कंट्रोल्ड एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एट हाई टेम्परेचर। मतलब हमें मीथेन का क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, कैसा ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा एट हाई टेम्परेचर। सो मीथेन विल अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर, और हमें क्या मिलेगा, इथाइन मिलेगा। एंड इथाइन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एसिटिलीन। इथाइन इज आल्सो कॉल्ड एज अ एसिटिलीन। सो आई जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन। I'll write down the reaction, methane, that is CH4। CH4 is called as a methane। Controlled oxidation मतलब oxidation करेंगे
एंड ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें मीथेन से क्या मिलेगा, इथाइन मिलेगा. व्हाट इज इथाइन फॉर्मूला, CH triple bond CH. IUPAC name is ethine and common name is acetylene. IUPAC name is ethine, common name is acetylene, and plus along with that we get carbon dioxide and plus we get hydrogen. Carbon dioxide plus we get hydrogen. You can balance the equation. Now when you balance the equation here, we are having O2, here also we are having O2. Carbon 1, 2 and 3 carbon. 1, 2 and 3 carbon. So here I'll write 3 carbon. And hydrogen, how many hydrogen we are getting here? 4 3s are 12. 4 3s are 12. So 12 तो यहाँ पे already 1 and 2 है, तो here I'll multiply by 5. 5 2s are 10. 10 plus 1 11. 11 plus 2 12. 5 2s are 10. 11 and 12. Okay. So methane with oxygen gives you what? Ethane and acetylene, carbon dioxide and hydrogen. तो ये हमारा oxidation है. What is here? That is ethane is industrially prepared by controlled partial oxidation of methane at high temperature. मतलब higher temperature पे मीथेन का हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे. हायर टेम्परेचर पे मीथेन का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इथाइन मिलेगा. इथाइन. सो मीथेन विद ऑक्सीजन इन द पार्शियल ऑक्सीडेशन गिव्स यू व्हाट, इथाइन, CO2 and H2O. करेक्ट. ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन हुआ. सेकेंड प्रिपरेशन, इथाइन इज industrially prepared by reaction of calcium carbide with water. Ethine is industrially prepared by reaction of calcium carbide with water. तो कैसे आएगा रिएक्शन, देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड CaC2. CaC2 is called as calcium carbide, react with water. Water I'll write HOH, and then calcium carbide react with water. Water formula is H2O, but H2O can be also written as what, HOH. And then here कार्बन, how many कार्बन, 2 कार्बन. यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन, कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, HOH, यहाँ पे CH और ये CH, तो क्या बनेगा, इथाइन. Acetylene. Ethane is also called as what, acetylene. So and calcium carbide react with the water, and calcium carbide react with the water, और हमें क्या मिलेगा, acetylene मिलेगा, and plus we get here as CaOH twice. CaOH twice is called as the calcium hydroxide. CaOH twice is called as what, calcium hydroxide. देखो यहाँ पे calcium carbide react with the water, और हमें क्या मिल रहा है, इथाइन मिल रहा है. इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एसिटिलीन, एंड प्लस वी आर गेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, बैलेंस करोगे तो देखो यहाँ पे OH कितने बार है, 2 बार है, और HH कितने बार है, 2 बार है. तो यहाँ पे OH लिखूंगा तो 2 बार, OH 2 बार, और H भी 2 बार आ रहा है, 2 times H and 2 times OH. तो यहाँ पे देखो 2 times H and 2 times OH. Calcium 1 time, calcium 1 time, carbon 1 plus 1 2, carbon 1 plus 1 2. इक्वेशन इज बैलेंस. तो हमें कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद भी क्या मिलेगा, एसिटिलीन मिलेगा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये हमारे 2 प्रिपरेशंस हो गए. तो वी हैव फिनिश्ड विद द 2 प्रिपरेशन. फर्स्ट प्रिपरेशन क्या था हमारा, दैट इज
पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन का क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इथाइन मिलेगा। और दूसरा क्या था, इथाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड बाय रिएक्टिंग विद वाटर। इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। ये वी हैव फिनिश्ड विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये हमारे प्रिपरेशंस हो गए। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग। द नेक्स्ट हेडिंग इज chemical properties of chemical properties of alkyne. Chemical properties of alkyne. Now chemical properties of alkyne are the first one, the chemical property, that is addition of hydrogen, and addition of hydrogen is called as addition of hydrogen is called as a hydrogenation. Addition of hydrogen is called as a hydrogenation. Addition of hydrogen is called as a hydrogenation. Now, what is hydrogenation reaction? Here we write hydrogenation reaction, that is here, that is acetylene. I can write here CH, triple bond CH, acetylene. IUPAC name is what? Ethyne. अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करोगे in the presence of nickel catalyst and heating at a very high temperature, acetylene में अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे in the presence of nickel catalyst, तो क्या होगा, 1H will go to CH and 1H will go to CH. एडिशन कहाँ पे हो रहा है, अक्रॉस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो एक H यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा, CH2, ट्रिपल बॉन्ड विल चेंज टू डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या आएगा, CH2। एक H यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा, CH2, एक H यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा, CH2, एंड ट्रिपल बॉन्ड है चेंज टू व्हाट, डबल बॉन्ड, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, इथिन मिला, हमें मिला इथिन। और एक बार इथिन मिलने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन में और हाइड्रोजन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट, इथिन में और हाइड्रोजन ऐड करो, अब यहाँ पे स्टिल डबल बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा लेफ्ट साइड कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन चला जाएगा राइट साइड कार्बन के पास, डबल बॉन्ड कहाँ, हाइड्रोजन कहाँ पे हो रहा है ऐड, अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और हमारा ये क्या बना, इथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, तो हमारा ये बनेगा इथेन। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा बनेगा इथेन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा रिएक्शन, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, व्हेन acetylene is heated with hydrogen gas, in the presence of Raney nickel as a catalyst, ethane is formed, ethane is formed। देखो, मतलब एसिटिलीन में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है, इथिन मिल रहा है,
एसिटिलीन में अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है, इथिन मिल रहा है, और इथिन में और हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है. So this is called as what? Addition of hydrogen. And addition of hydrogen is called as what? Hydrogenation. Correct? तो हमें ये मिल रहा है इथाइन से बनेगा इथीन और इथीन से बनेगा इथेन. ये हमारा इथीन है. इथीन क्यों? 2 कार्बन एटम है इसलिए ईथ, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा, इथीन. Addition of halogen. Addition of halogen, and addition of halogen is called as halogenation. Addition of halogen is called as halogenation. Here acetylene reacts with chlorine and forms acetylene react with chlorine and form acetylene tetrachloride. Acetylene react with chlorine and forms acetylene tetrachloride. अगर मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे तो acetylene react with the chlorine to form acetylene tetrachloride. That is, first we'll have carbon carbon triple bond CH. This is acetylene. अगर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा क्लोरीन, हेलोजन, हेलोजन ऐड करना, हेलोजन कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन. वी आर एडिंग हेलोजन in the presence of CCl4. CCl4 is what? Carbon tetrachloride. CCl4 is called as a carbon tetra. One Cl will go to left side of the triple bond, one Cl will go to the right side of the triple bond. करेक्ट. और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर प्रोडक्ट मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH, और एक Cl चला जाएगा यहाँ पे, एक Cl चला जाएगा यहाँ पे. तो ये हमारा एसिटिलीन है. तो इसे आप क्या बोलोगे, एसिटिलीन डाइक्लोराइड. इसे आप क्या बोलोगे, एसिटिलीन डाइक्लोराइड. एसिटिलीन डाइक्लोराइड. अगर ये एसिटिलीन डाइक्लोराइड बन गया तो फिर यहाँ पे CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl. तो ये हमारा एसिटिलीन का हमारा ओरिजिनल कंपाउंड एसिटिलीन है. एसिटिलीन में क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया. तो क्या बना, एसिटिलीन डाइक्लोराइड बना. एसिटिलीन डाइक्लोराइड में और क्लोरीन ऐड कर दो, और क्लोरीन ऐड कर दो, एंड कंडीशन सेम ही रहेगा. अभी एक क्लोरीन जाएगा डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में, और एक क्लोरीन जाएगा डबल बॉन्ड के राइट साइड में. एडिशन कहाँ पे हो रहा है, अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो रहा है. यहाँ पे क्या मिलेगा, C सिंगल बॉन्ड C, जो डबल बॉन्ड था वो क्या बना, सिंगल बॉन्ड HCl. HCl पहले से ही प्रेजेंट है, और एक Cl जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे Cl और एक यहाँ पे आएगा. तो ये क्या बना हमारा, एसिटिलीन एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड. क्या बनेगा, हम यहाँ पे एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बनेगा. एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बनेगा, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड. ओके. तो ये हमारा एसिटिलीन डाइक्लोराइड है, ये हमारा एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है. ओके. एसिटिलीन डाइक्लोराइड एंड एसिटिलीन टेट्रा. तो देखो वापस एक बार रिपीट करता हूँ. एसिटिलीन में क्या ऐड किया था, क्लोरीन ऐड किया था. तो क्या बना, एसिटिलीन डाइक्लोराइड बना. करेक्ट, एसिटिलीन डाइक्लोराइड बना. और एसिटिलीन डाइक्लोराइड में वापस एक बार क्लोरीन ऐड कर दिया तो क्या बना, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बना. ओके.
third reaction, that is addition of hydrogen halide. Addition of hydrogen halide. I'll write down the first reaction. Hydrogen halide means what? HX, and HX means what? HCl. X मतलब halide, HCl, HBr and HI. हम लोग यहाँ पे HBr ऐड करें. Addition of hydrogen halide. Hydrogen halide. X is a halide, and halide can be what? Hydrogen fluoride, hydrogen bromide, or hydrogen iodide. Hydrogen fluoride, hydrogen bromide, and hydrogen iodide. We will write here acetylene CH, triple bond CH, add karo HBr, or this is ethyne. This is ethyne, very commonly called as what? Acetylene. This is ethyne, very commonly called as what? Acetylene. And then it is a symmetrical. सिमेट्रिकल क्यों? ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH, और ट्रिपल बॉन्ड के राइट साइड में भी कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH. ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में और ट्रिपल बॉन्ड के राइट साइड में सेम ग्रुप आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल. और अगर सिमेट्रिकल रहेगा देन एडिशन ऑफ द रिएजेंट कैन बी डन द वे वी वांट. अगर ये सिमेट्रिकल रहेगा द एडिशन ऑफ द रिएजेंट कैन बी डन बाय द वे वी वांट. तो H चला जाएगा CH के पास, H चला जाएगा CH के पास, और Br चला जाएगा CH के पास. तो H चला जाएगा CH के पास तो क्या बनेगा? CH2. H चला जाएगा CH के पास तो क्या बनेगा? CH2. ट्रिपल बॉन्ड विल चेंज टू व्हाट? डबल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड विल चेंज टू डबल बॉन्ड, और Br यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा? CHBr. CH2 डबल बॉन्ड CHBr. ये कंपाउंड हमें मिला, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, ये हमें मेन कंपाउंड, एक मिडिल कंपाउंड मिला. देखो H चला जाएगा लेफ्ट साइड कार्बन के पास तो क्या बनेगा? CH2. ट्रिपल बॉन्ड विल चेंज टू व्हाट? डबल बॉन्ड, और एक Br यहाँ पे चलेगा. तो ये कंपाउंड मिलने के बाद आगे वाला प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH Br. अभी ये जो हमारा कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है कैसा है? देखो इसका अगर नाम लिखना है तुम्हें तो क्या लिखोगे? Br यहाँ पे, तो ये रहेगा नंबर कार्बन 1, ये रहेगा नंबर कार्बन 2. तो नंबर कार्बन 2 और 1 पे आ रहा है Br, तो क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो. 1 पे आ रहा है Br तो क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो. How many carbon atom in the chain? 2 carbon atom in the chain, so it can be called as the eth. And carbon carbon double bond, so it is called as the ethene. देखो एक बार वापस, Br आ रहा है 1 पे तो इसलिए 1 ब्रोमो. नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन इज 2, 2 इज कॉल्ड एज द eth. और 2 कार्बन के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड तो क्या बनेगा? ethene. 1 ब्रोमो ethene. और ये 1 ब्रोमो ethene में क्या ऐड करोगे? वापस क्या ऐड करना है तुम्हें? HBr ऐड करना है. अगेन HBr ऐड करना है. बट अभी ये जो हमारा कंपाउंड है वो कौन सा है? अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल क्यों? अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH2 आ रहा है, और डबल बॉन्ड के राइट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CHBr आ रहा है. तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड वाला ग्रुप है CH2, डबल बॉन्ड के राइट साइड वाला ग्रुप है CHBr. डबल बॉन्ड के दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए उसे क्या बोलोगे? अनसिमेट्रिकल. अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो एडिशन ऑकर्स अकॉर्डिंग टू, अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा देन एडिशन ऑकर अकॉर्डिंग टू मार्को मार्कोनिकॉफ रूल. व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? H के ऊपर चार्ज रहेगा पॉजिटिव, Br के ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव. व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट Br, एडिशन कहाँ पे होगा? अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एडिशन कहाँ पे होगा? अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड.
negative part of the reagent goes to carbon atom carrying less number of hydrogen. यहाँ डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के राइट साइड में यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है. तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम रहेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम रहेगा वहां पे हमारा एडिशन होगा. तो बी आर का, तो व्हाट इज मार्कोनिकॉव्स रूल? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, the negative part of the reagent goes to the carbon atom carrying less number of hydrogen. तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है. हमारा नेगेटिव पार्ट किसके पास चला जाएगा? CH के पास. तो H चला जाएगा CH2 के पास. H चला जाएगा CH2 के पास. तो H अगर चला जाएगा CH2 के पास तो क्या बनेगा? CH3. डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा CH. ऑलरेडी एक Br है, यहाँ पे और एक Br मिल जाएगा. CH2H यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 बनेगा. H यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 बनेगा. डबल बॉन्ड क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा. HBr ऑलरेडी यहाँ पे Br है. अभी देखो इस एक कार्बन एटम 1 और ये कार्बन एटम 2, 1 पे दोनों Br आ रहा है, बिकॉज जहाँ पे Br रहेगा उस कार्बन को पहला नंबर देना है. जहाँ पे Br रहेगा, Br मतलब फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस कार्बन को नंबर 1 देना है. यहाँ पे नंबर क्या आएगा? 1,1 डैश. दोनों Br एक ही कार्बन पे 1,1 डैश. डाइब्रोमो, 2 ब्रोमीन है इसलिए डाइब्रोमो. and how many carbon atom in the chain? 2 carbon atom in the chain is called as the eth. 2 carbon atom in the chain is called as the eth and carbon is called as the ethane. देखो Br जहाँ पे रहेगा उस कार्बन को पहला नंबर देना, तो ये नंबर 1 बनेगा. नंबर 1 पे 2 Br है इसलिए 1,1. 2 Br के लिए क्या लिखोगे? डाइब्रोमो. 1,1. Why 1,1? This Br is also on the first carbon atom. This Br is also on the first carbon atom. So 1,1 dibromo. And how many carbon atom in the chain? 2 carbon atom in the chain. 2 carbon atom in the chain is called as ethane. और 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ethane. तो हमारे 3 प्रिपरेशंस हुए, 3 केमिकल रिएक्शंस हुए. कौन से 3 केमिकल रिएक्शन थे? एसिटिलीन और इथाइन में पहले क्या ऐड किया था? हाइड्रोजन. ओके. बाद में एसिटिलीन और इथाइन में क्या ऐड किया था? क्लोरीन. और बाद में इथाइन और एसिटिलीन में क्या ऐड किया था? HBr. पहला एक मॉलिक्यूल HBr का ऐड किया, वापस सेकंड एक HBr का ऐड किया. तो ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस हो गए. अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन कंप्लीट करने के बाद विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज uses of एसिटिलीन. एसिटिलीन के यूजेस क्या क्या है? The first one, uses of acetylene, and acetylene is also called as what? Ethyl. Uses of acetylene and acetylene is also called as what? Ethyl. So what is the first one? Ethyl is used in the preparation of acetaldehyde, acetone, acetic acid. Ethyl is used in the preparation of what? Acetaldehyde, acetone, acetic acid. Ethyl is used in the preparation of acetaldehyde, acetone, and acetic acid. Correct? Second one, it is ethyl. It is used in manufacture of, it is used in manufacture of polymer,
synthetic rubber, plastic, etc. It is used in the manufacturing of polymer, synthetic rubber and plastic, etc. It is also used for artificial ripening of fruits. It is used for artificial ripening of the fruits. It is used in oxyacetylene flame for welding and cutting of metal. So what are the uses here? First, it is used to prepare what? Organic compound like acetaldehyde and acetone, etc. It is used in the preparation of the compound called as acetaldehyde, acetone, etc. Second, it is used in the manufacture of polymers, synthetic rubber and plastic, etc. It is used for artificial ripening of the fruits, and it is used in the oxyacetylene flame. It is used in oxyacetylene flame for welding and cutting of the metal. It is used in the oxyacetylene flame for welding and cutting of the metal. तो ये हमारे acetylene के uses है. Okay, these are the uses of acetylene.